हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम आपके साथ 10 ऐसी किताबें, ऐसी बुक्स इंट्रोड्यूस करवाएंगे विच आर नेसेसरी फॉर एवरी CSS एस्पायरेंट टू रीड, और हम आपके साथ इन बुक्स के डाउनलोड लिंक्स भी शेयर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेज इज दैट व्हाई यू मस्ट रीड दिस बुक्स। तो उसकी तीन रीजंस हैं। Number one, these books will equip you with knowledge and concepts necessary for you to understand Pakistan's present predicament and future prospects. Second reason है कि they will also help you perform well in compulsory subjects. And thirdly, they will help you perform well in some optional subjects as well. These optional subjects include political science, economics, international relations, different subjects of history like Pakistan history, British history, European history, American history, and then public administration and governance and public policy. So let's start. The book number 10 is on the list is Pakistan Society, Islam, Ethnicity and Leadership in South Asia by Akbar S. Ahmed. और इस किताब का जो डाउनलोड लिंक है जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं वो भी हमने स्क्रीन पे आपके साथ शेयर किया है. This book, Pakistan Society, is a collection of essays on different aspects of Pakistan society and culture. और उसमें जो टॉपिक्स कवर किए गए हैं they include ethnic and class diversity of Pakistan society, Islam and Pakistani identity, ethnicity and political leadership, the role of religion in Pakistan, in Pakistani society, and then social structures, beliefs and practices of different communities living in Pakistan. क्योंकि पाकिस्तान एक मल्टी एथनिक मल्टी कल्चरल सोसाइटी है और इट्स अ वेरी डाइवर्स सोसाइटी, तो ये किताब उस डाइवर्सिटी को कैप्चर करती है और उसको एक्सप्लेन करती है. इसके ऑथर का एडिटर इज अकबर सलाहुद्दीन अहमद, हु इज नोन एज अकबर एस अहमद. He was a civil servant, he was a CSP officer, but then he turned towards academia. He is also the producer of the 1998 movie entitled Jinnah, जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की लाइफ पे और उनकी अचीवमेंट्स पे बनाई गई थी. नंबर 9 पे बुक है इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी बाय एस अकबर जैदी. This book provides a comprehensive and holistic account of Pakistan economy since 1947. और मैं ये आपके साथ शेयर करूं कि पाकिस्तान इकोनॉमी पे इससे ज़्यादा comprehensive बुक आपको नहीं मिलेगी. और इस बुक की जो एक सेलियंट फीचर है वो ये है कि इट गिव्स ए पॉलिटिकल इकोनॉमी पर्सपेक्टिव. ये सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के बारे में आपको नहीं बताएगी, पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में नहीं बताएगी, बल्कि आपको ये भी बताएगी कि किस तरह पॉलिटिकल कॉन्सिडरेशंस ने, पॉलिटिकल फैक्टर्स ने पाकिस्तान की इकोनॉमी को अफेक्ट किया है, हाउ दे शेप्ड दिस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग इन पाकिस्तान. Author is Dr. Akbar Zaidi. He is an eminent economist who is presently heading the prestigious Institute of Business Administration, Karachi. Number 8 पे बुक है पाकिस्तान द इकोनॉमी ऑफ एन एलिट स्टेट बाय डॉक्टर इशरत हुसैन. This book covers economic development in Pakistan over 50 years, that is from 1947 to 1997. The basic thesis of the book is that regardless of the form of government, Pakistan's economy has been a manifestation of elite culture. तो बेसिकली ये आपको ये बताती है कि पाकिस्तान में कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहा हो, प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, सिविलियन, मिलिट्री, डिक्टेटोरियल या डेमोक्रेटिक, इकोनॉमी पे कुछ ख़ास लोग हैं, उनके बेनिफिट में इकोनॉमी ऑपरेट हुई है. जो मेजर इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग हुई है वो उस क्लास के इंटरेस्ट को सामने रख के हुई है, तो इसको कहते हैं एलीट कैप्चर. The author of this book needs no introduction. Dr. Ishrat Hussain served as the Governor of State Bank of Pakistan and also advisor to various governments. Number 7 पे बुक है Pakistan's Foreign Policy and Historical Analysis by S.M. Burke and Lawrence Zering.
It is easily the best guide to understand Pakistan's foreign policy from 1947 onward. The author Samuel Martin Burke was an ICS officer. इंडिपेंडेंस से पहले इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे, जो जिन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद फॉरेन सर्विस ऑफ पाकिस्तान ज्वाइन कर लिया एंड देन ही सर्व्ड इन वेरियस डिप्लोमेटिक असाइनमेंट्स। तो इनका ना सिर्फ एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, बल्कि इनका, क्योंकि वो खुद डिप्लोमेट रहे हैं, तो उनका एक प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव भी उन्होंने इस किताब में आपको दिया है। नंबर 6 पे किताब है द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, ए स्टडी इन नेशनलिज्म बाय के अजीज। This book is a holistic account of the growth of Muslim nationalism in India, leading to the creation of Pakistan. तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि पाकिस्तान क्यों बना, मुस्लिम नेशनलिज्म की ग्रोथ किस तरह हुई, और क्यों पाकिस्तान इंडियंस मुस्लिम्स ने बाय दे डिमांडेड अ सेपरेट होमलैंड। तो इस बुक में एक होलिस्टिक आपको पर्सपेक्टिव दिया है। ये आपको ना सिर्फ रिलीजियस आर्गूमेंट्स देगा या रिलीजियस बेसिस प्रोवाइड करेगी मुस्लिम नेशनलिज्म की, बट आल्सो द कल्चरल बेसिस, द पॉलिटिकल बेसिस and the historic basis. So it's a very comprehensive and holistic account of the Muslim nationalism. So author K.K. Aziz, उनका पूरा नाम खुर्शीद कमाल अजीज था. He was one of the best known writers on history or historian in Pakistan, and he taught at Cambridge and Oxford universities. Number 5 पे बुक है World Politics Since 1945. This is authored by Peter Calvo-Cressy. इसके बहुत से एडिशन जो हैं इस किताब के शाया हो चुके हैं। सो इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इन 1945, देन देयर इज अ बेटर बुक देन वर्ल्ड पॉलिटिक्स सिंस 1945। एक किताब आपको बताती है पोस्ट वर्ल्ड वार 2 ऑर्डर जब रिकन्स्ट्रक्ट हुआ, कोल्ड वार शुरू हुई, उसके बाद मजीद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वर्ल्ड स्केल के ऊपर, वो किस तरह हुई और किस तरह जो मेजर पावर्स थी लाइक यूएसए, फॉर्मर यूएसएसआर, यूरोपियन कंट्रीज एंड चाइना, they influence the international relations and international economic and political order. Born in Karachi, Peter Calvo-Cressy was a British lawyer, historian and politician. So he also brings both theoretical and practical perspectives. Number 4 पे किताब है The Political System of Pakistan, and this is authored by Mr. Khalid B. Saeed. This book provides a valuable insight into the political and administrative structure of Pakistan. पाकिस्तान में जो political और administrative जो civil service में भी जो developments हुई हैं, जो आपके लिए आप इसमें interested होंगे, उसके बारे में आपको एक बड़ा comprehensive insight बताती है। Khalid bin Saeed was one of Pakistan's leading political scientists. उन्होंने बहुत सी किताबें पाकिस्तान पे बारे में लिखी हैं। He taught at Queen's University, Kingston, Canada. नंबर 3 पे जो बुक है वो है पाकिस्तान द एनिग्मा ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट बाय लॉरेंस ज़ेरिंग। इट कवर्स अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स बेयरिंग अपॉन पाकिस्तान पॉलिटिकल डेवलपमेंट, जिसमें इंक्लूड है रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड पार्टीज, पॉलिटिक्स ऑफ एथनिसिटी, फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान। सो इट्स आल्सो अ वेरी comprehensive account of the post-independence developments in Pakistan. Author is Dr. Lawrence ज़ेरिंग. He was a US-based political scientist, and he's one of the most well-known, internationally well-known figures on Pakistan. He was considered an authority on Pakistan. Number 2 पे बुक है वो है A Practical English Grammar by A.J. Thompson and A.V. Martinet. दिस बुक इज़ अवेलेबल ओनली इन हार्ड फॉर्म, और ये क्योंकि ऑक्सफोर्ड पब्लिशर्स ने इसको किया तो ये इजीली अवेलेबल है। तो CSS में बहुत से स्टूडेंट्स इस वजह से क्वालिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वो रिटन एग्ज़ाम में इंग्लिश ऐसे या इंग्लिश प्रेसी और कंपोजिशन में फेल हो जाते हैं, क्वालिफाई नहीं कर सकते, और उसकी बड़ी वजह यह है कि दे आर नॉट एबल टू राइट करेक्ट इंग्लिश। तो CSS में आपके लिए ज़रूरी है कि आप यू मस्ट हैव द एबिलिटी टू राइट करेक्ट इंग्लिश। ग्रामर जो है आपको उसके बेसिक असूल जो उसके प्रिंसिपल्स हैं, यू मस्ट बी वेल फेमिलियर विद देम। आपको ग्रामर पे, इंग्लिश ग्रामर पे बहुत सी बुक्स मिलेंगी, लेकिन मेरे ख्याल में जो बेस्ट बुक है वो ये प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस बुक को
ज़रूर इसको पढ़ें। और नंबर 1 पे जो मैं बुक रखूँगा वो है द रैंडम हाउस हैंडबुक। ये जो बुक है ये प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर का एक कम्प्लीमेंट करती है। जैसे प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर आपको बताएगी कि आपने करेक्ट इंग्लिश कैसे लिखनी है और ग्रामर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करनी है। इसी तरह जो रैंडम हाउस हैंडबुक है दैट विल एनेबल यू टू राइट इफेक्टिवली एंड परसुएसिवली। आपको अच्छी इंग्लिश, खूबसूरत इंग्लिश, परसुएसिवली इंग्लिश, जिसमें आप अपने आर्गूमेंट से एग्जामिनर को कन्विंस कर सकें, उसके बारे में आपको बताएगी। क्योंकि दीज बुक्स सप्लीमेंट ईच अदर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल CSS प्रिपरेशंस को सब्सक्राइब कर लें और आपके कोई भी कमेंट्स हो वो काइंडली मेरे साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।